As you know that India is supposed a country of diversity. There is many different type of culture, dressing habits, fooding habits, religion, and customs. But all these make one India, one nation. Okay, so it is supposed that in India there is unity in diversity. This chapter number 7, glimpses of India, reflect the spirit of united India. Okay, and in this chapter you see three glimpses of India. One glimpse from Goa, second glimpse from Coorg, and third glimpse from Assam. And it is not so that there is only these three glimpses. There are many type of varieties of people, their culture, their custom, their tradition. Okay, these are one of them. And out of that, today you will study Coorg. It is a country area. Country means not only nation, country means village side also. Okay, when there is any village side, that is also called country area. Is it clear? So where when there comes a word country, don't think that it is only about nation. It is about village area also, remote area also. Okay, now come on, text of your book, second part of the glimpses of India, chapter number 7, Coorg. The very first line is written, Coorg is coffee country. Coffee country means rich, rich in coffee plantation. Okay, it is area, village area, rich with coffee plantations, famous for its rainforest and spices. Means three things of Coorg area is famous. The first thing, the plantation of coffee. Second thing, it's a rainforest, the forest where it rains heavily all over the year. Okay, in each and every month. Okay, and from April to October, there it rains so much that visitors, the tourists, haven't courage to visit Coorg. Means the pour of water keeps them away. जो भारी बारिश होती है वह विजिटर्स को, टूरिस्ट को कूर्ग से दूर रखती है अप्रैल से लेके अक्टूबर तक. एंड फ्रॉम सितंबर टू मार्च they can visit Coorg because there is less raining. It is not so that there is no raining. That time also there is raining, but that is affordable. They can tolerate that type of raining, and so they visit Coorg during months of September to March. Okay. Once again, I am repeating the very first line. Coorg is coffee country, famous for its rainforest and spices. Spices means masale. Okay. Midway between Mysore and coastal town of Mangalore sits. Sits means exist. Here sits means exist. A piece of heaven. Here he is comparing Coorg to heaven. Okay. What figure of speech is used in this line? Who can tell? Please speak. Open your. Don't answer in message. I do not read messages. Open your mic and tell which device is used here when it is written a piece of heaven. What figure of speech is here? Sir, metaphor. Yeah? Dhruv Chauhan is... Personification. No. Personification is not. Any other student? Heaven is not any person. Heaven is a place. Metaphor, sir. Sir, hyperbole. Hyperbole? No. Sir, hyperbole. No, Srijan, not. It is not correct. Metaphor. Yeah. Who told metaphor? Metaphor is correct answer. Sir, Dhruv Chauhan. Yeah, okay. It is correct answer. Because Coorg is compared to heaven, but not used word like. It is not said that Coorg is like heaven. Okay. They told that Coorg is heaven. So comparison without use of like, that is metaphor. So here is metaphor. Okay.
that must have drifted. Drifted means what? Who can tell? Tell. Drifted means what? To move slowly. Move slowly, correct, but not absolutely correct. Sir, to be carried. Sir, Yeah, being yeah. carried. Sir, to be carried. along by air. जब कोई चीज हवा से बहा के कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो जाती है, हवा से उठा के नहीं, कैरिड अलोंग बाई एयर, तो उसे ड्रिफ्टेड कहते हैं. क्लियर? तो ऐसा लगता है कि हेवन से कोई लैंड का टुकड़ा, कोई आंधी चली, तूफान चला और आ गया यहाँ कर्नाटका में. ओके, तो ड्रिफ्टेड फ्रॉम हेवन, ये उसकी विशेषता बताने के लिए काफी है कि कितना प्यारा जगह है ये कूर्ग. ऐसा लगता है कि हेवन से हवा के द्वारा उड़ के ये जमीन पे आ गया है. ओके, ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. किंगडम ऑफ गॉड से ड्रिफ्टेड होके हवा में उड़ के ये यहाँ आ गया है. This land of rolling hills, there is a lot of rolling hills, is inhabited. Inhabited means inhabited, very common word. Sir, occupy. Yeah, occupied, lived in. Okay, रहते हैं यहाँ पर. Inhabited by a proud race of martial man. Martial means war liking. Martial means what? War liking. Okay, warriors, knights, men, beautiful women, and wild creature. Means men of here are warlike. They are like soldiers, and miss their physique is very strong. Here ladies are very beautiful, and the animals of this area are wild. Coorg or Kadagu. Coorg is known as Kadagu also, its second name. Okay, many persons have two names, some places also have two names. Our country also has two names. What is official two names of our nation? Who can tell? What are official two names of our nation? Sir, Hindustan or Bharat. Wrong answer. Hindustan is not. Sir, India and Hindustan. Wrong answer. Wrong answer, Vaishnavi. Yeah, any other? So Bharat and India. Yeah, it is correct. India, that is Bharat. Okay, in our constitution, it is written, our nation's name is India, that is Bharat. India, and otherwise our nation is known as many names. Aryavart, Hindustan, and many other also. Okay, Hind Desh, many names of our nation, but two official names of our country is India, that is Bharat. India and Bharat is official name of our nation. Okay. So in the same way, Coorg also has two names, Coorg and Kodagu. Okay. The smallest district of Karnataka. Karnataka का सबसे छोटा district है. As what is name of your district? Who can tell? What is name of your district? Azamgarh. Yes, Srijan, correct. Azamgarh. Is your district. It is situated in Uttar Pradesh. Okay. In the same way, Coorg is a district of Karnataka. Okay. And it is the smallest district of Karnataka. सबसे छोटा district है. Is home of evergreen rainforest. यहाँ पर हमेशा हरे भरे रहने वाले rainforest हैं. Spices and coffee plantations. It is told in very first line also. It is told in very first line also that Coorg is home of plantation of coffees, rainforest, and spices. Many spices. Evergreen rainforest cover 30% of district. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. Means it rains so much that visitors do not dare to go there. Okay, very heavy rain. And the season of joy commences. Commences means, yeah, tell you. Commences means, what is meaning of commence? Starts. Yeah, Sunny, correct. Start, begins.
September and continues till March. Means from September to March you can visit Coorg, and in other months it rains so much there, so heavily there, कि it is impossible to go there. Okay, the weather is perfect with some showers thrown in for good measure. इन मौसमों में, इन मौसम मतलब कि फ्रॉम सितंबर टू मार्च बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती, इतनी होती है कि आप उसको टॉलरेट कर सको. द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगरेटिंग कॉफीज. इनविगरेटिंग मींस, या इनविगरेटिंग मींस Energy energetic. giving. या Energy giving. once again I could not listen. Energetic. Sir, energy giving coffee. Yeah, vigorous, freshness, full of freshness, energy giving. Correct answer. And coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. Okay, there are many colonies and bungalows, coffee estate. These are tucked in canopies of trees. Means there are so much trees that make a canopy, umbrella. Okay, like this. From here also trees, from here also trees, and under this the coffee estate and bungalows and means their houses are not covered with sky. As when you look up from your home, when you go on roof for your home, what do you see above to you? जब आप अपने घर के छत पे जाते हो, ऊपर देखते हो तो क्या नजर आता है? Sky. बट इट इज नॉट सो इन कूर्ग. कूर्ग में ऐसा नहीं है. कूर्ग में वो छत पे जाएंगे तो उन्हें ट्रीज नजर आएंगे, और ट्रीज की कैनोपीज पूरी बनी होती है. उनके नीचे उनके कॉलोनीज, उनके बंगलोज, उनके होम्स, उनके प्लांटेशन. मींस देयर इज सो मच फॉरेस्ट. ओके, दे सी ओनली ट्रीज एवरीवेयर. If there is trees, there will be animals, there will be many things. Okay, see the next paragraph in your book. The fiercely independent people. Fiercely means here excellent, excellent, brave. Okay, independent people of Coorg or possibly of Greek or Arabic descent. Here he is talking about the origin of Coorg people. There is theory. There is how many theory? Two theory of origin of Coorgs. Okay, as one story goes, मिस जो पहली थ्योरी है, जो पहली स्टोरी है जो बताती कूर्ग कौन थे. A part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return become impractical. यानी कि अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर भी कहते हैं, वो यहाँ पर आया था अपने सेना की टुकड़ी के साथ, तो उसकी उस टुकड़ी को वापस जाना असंभव हो गया. वो बारिश में फंस गए. As you know that visitors also do not dare to go in during monsoon season. Okay, तो वो रह गए वहीं पे शादी ब्याह कर लिए, वहीं पे रहने लगे, वहीं पे बस गए. तो माना जाता है कि वो लोग ही कूर्ग एरिया में रह गए. अदरवाइज पहले वहां कोई लोग रहता नहीं था, केवल फॉरेस्ट था. आप समझ रहे हो इस बात को? कर्नाटक के उस डिस्ट्रिक्ट में पहले माना जाता था केवल फॉरेस्ट था, आदमी लोग, इंसान वहां पे नहीं रहता था. अलेक्जेंडर की एक टुकड़ी वहां गई, फंस गई, रह गई और वहीं पर बस गई, और वही कूर्ग रेस के रूप में, कूर्ग जाति के रूप में वहां पे रहे. पहली थ्योरी ये है. तो वो देखो आप बुक में फिर से देखो आप. As one story goes, a part of Alexander's army moved south means in Karnataka, okay, along the coast and settled here when return became impractical, means impossible. Okay, these people married amongst the locals and their culture is apparent means very easily visible in martial tradition, marriage and religious rites, which are distinct means different from Hindu culture, Indian culture. Okay, from the Hindu mainstream. The theory of Arab origins. Some says no, these are not Alexander's true. Some Arab people came and settled here. Okay, second theory. It is not sure which theory is correct, but two theories are famous about Coorg.
The theory of Arab origin draws support from the long black coats with embroidered waist belt worn by the Kodwas, यानी जो वहां के कुर्ग होते हैं उनकी जो ड्रेस है वो अरेबियन पीपल से मैच करती है। तो लोग कहते हैं कि ऐसा ड्रेस अरब के लोग पहनते हैं, इसका मतलब अरब के लोग आके यहाँ पे रहे थे, ठीक है ना। नोन एज कूपिया, उस जो ड्रेस वो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, कूपिया। is resembles means seems like, okay, the kufiya worn by Arabs and the Kurds, कुर्ग के जो लोग हैं वो कुर्ड्स, वो उनके जैसे ड्रेस पहन रहे थे, इसलिए some people think that they are Arab origin and उनके जो कस्टम हैं, उनके जो मैरिज और जो ट्रेडिशंस हैं एंड उनका जो मार्शियल लाइक नेचर है, वॉर लाइक नेचर है, these things shows that they are of Alexander's troop. Okay, now come on next paragraph. Kurgi homes have a tradition of hospitality. What is meaning of hospitality? Yeah, any of you tell what is meaning of hospitality? Speak. Sir, a friendly reception. Not very correct. Hospitality. Any other student please tell? Warm reception for a guest. Okay, good. Correct answer. Sunny, you repeat. Your answer is correct. You please repeat once again loudly. Warm reception for a guest. Warm reception for a guest is called hospitality. ठीक है ना, कोई अतिथि आपके घर आया और उसका आपने बहुत अच्छा सेवा सत्कार किया तो इसी को हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। हॉस्पिटैलिटी का मतलब अस्पताल से मत समझ लेना कि हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी मीन्स उसको होस्ट, क्योंकि गेस्ट जो अतिथि होता है उसको गेस्ट कहते हैं और जिसके यहाँ अतिथि जाता है उसको होस्ट कहते हैं, ठीक है ना। और जब होस्ट यानी जिसके यहाँ अतिथि आया है वह उसका अच्छा स्वागत सत्कार करता है तो उसका वार्म रिसेप्शन करता है तो उसी को हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी कि वहां पे जो कुर्ग के लोग हैं उनके यहाँ जो गेस्ट आते हैं वो उनका बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। और भारत में तो ये बोला जाता है कि अतिथि देवो भव, भारत में क्या कहा जाता है, अतिथि ही देवो भव, यानी हम अतिथि को देवता की तरह, गॉड की तरह उसका आदर सत्कार करते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी जो है, ये क्वालिटी जो है, ये हमारे ट्रेडिशन में, कल्चर में, कुर्ग में भी है, ये हर घर में है। And they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father. उनके बेटे और पिता के वीरता की कहानियां वो खूब सुनाते हैं उनके यहाँ जो आता है। Valor means their courage, their braveness, okay, their martial nature, इन सब के बारे में खूब बताते हैं। कोई भी आप पहुंचेगे उनके यहाँ तो बताएंगे ये लड़ाई मेरे पापा ने लड़ी थी, मेरे बेटे ने ये युद्ध जीता था, दिस दैट, ठीक है ना। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में तमाम रेजिमेंट्स हैं, उसमें कुर्ग रेजिमेंट बहुत ही डेकोरेटेड मानी जाती है, वेल इक्विपमेंट से सजी धजी मानी जाती है, बहादुर रेजिमेंट मानी जाती है। और एक देखो फैक्ट यहाँ पे बता रहा है, वो फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। फैक्ट क्या बता रहा है, एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के पहले चीफ जनरल करियप्पा वाज द कुर्गी, यानी इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ जनरल करियप्पा हुए थे वह कुर्ग से ही थे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ के लोग बहादुरी में, लड़ाई में, इन सब चीजों में बहुत प्रफंड, बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्किल्ड, टैलेंटेड माने जाते हैं। इवन नाउ Kodaus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. आप कोई भी गन, पिस्टल
ठीक है ना। कोई भी गन, पिस्टल, बंदूक, ये सारी चीजें बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते। लेकिन कूर्ग के निवासी को ये फ्रीडम मिली हुई है कि वो बिना लाइसेंस के भी फायर आर्म्स रख सकते हैं। ये स्पेशल है कूर्ग के लिए। भारत में कहीं पर भी आपको अगर गन रखना है, पिस्टल रखना है, कोई फायर आर्म्स रखना है, कोई भी बंदूक और पिस्टल रखना है, उसके लिए आपको लाइसेंस होना जरूरी है। लाइसेंस नहीं तो इलीगल होगा, आप जेल चलो जाओगे, आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। लेकिन कूर्ग में, अगर आप कूर्ग के निवासी हैं, कर्नाटक में भी सब जगह नहीं, केवल कूर्ग में, अगर आप कूर्ग के निवासी हैं तो आपको फायर आर्म रखने की छूट होती है। ठीक है। आपको लाइसेंस की जरूरत वहां पे नहीं होती। सी नेक्स्ट पैराग्राफ। द रिवर कावेरी obtained its water from the hills and forest of Coorg। आपको पता है नदियों में पानी कहाँ से आता है? पहाड़ों से ना। तो जो कावेरी नदी है उसमें जो पानी आता है, कूर्ग में जो खूब बारिश होती है, वहां खूब जंगल है। आपको पता है फॉरेस्ट अट्रैक्ट क्लाउड्स, यू नो दिस और नॉट? फॉरेस्ट अट्रैक्ट्स क्लाउड्स। जहाँ पे खूब ढेर सारे फॉरेस्ट होंगे, बिग फॉरेस्ट होंगे, वहां पे बारिश नेचुरली होगी खूब। और वहां पर है, कूर्ग में है खूब बड़े बड़े फॉरेस्ट, इसलिए वहां पर बारिश खूब होती है। तो जो कावेरी नदी है उसका मैक्सिमम वाटर कूर्ग से ही मिलता है, कूर्ग के माउंटेन और फॉरेस्ट से। ठीक है ना। महाशीर, लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबंड इन दीज वाटर। एक महाशीर नाम की मछली होती है, खूब ढेर सारी पाई जाती है। ठीक है। यहाँ के एंड किंगफिशर्स डाइव, किंगफिशर इज नेम ऑफ बर्ड, वो वहां पे खूब ज्यादा होती है। वो डाइव करती है, झपट्टा मारती है, उसका फूड उस फ्रेश वाटर के सोर्स में मिलता है। फॉर देयर कैच, वही कैच मींस हियर हंटिंग। यहाँ कैच मतलब क्या है? अपने शिकार के लिए, अपनी हंटिंग के लिए डाइव करती है। while squirrels and langurs drop partially eaten fruits for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। जो लंगूर्स और स्क्वायरल्स, गिलहरी, कुछ फल खा के कुछ फल गिरा देते हैं नदियों में, तो मछलियां उसको लेने के लिए जंप करती हैं। ठीक है। महाशीर और अदर फिशेस, तो खूब ढेर सारा स्प्लैश वगैरह नदियों में वहां के खूब दिखता है, छप छप करती हैं। आप लोग फिल्मों वगैरह में देखते हैं ना, मछलियां जंप करती हैं ऐसे। तो जहां फल गिरा है तो उनको खाने के लिए जंप करती हैं। और कोई न कोई गिलहरी, कोई न कोई लंगूर, कोई न कोई मंकी, ये सब उसमें ड्रॉप करते हैं, क्योंकि पेड़ होते ही हैं चारों। ठीक है। एंड सी अहेड, elephants enjoys being bathed and scrubbed in the river by their महावत्स। वहां की नदियों में महावत्स जो होते हैं वो ढेर सारे हाथियों को लेके जाते हैं। हाथियां भी वहां की जंगलों में खूब ढेर सारी होती हैं, तो वहां पर जाते हैं और वहां नदियों में नहाते हैं। तो ये हाथी, चिड़िया, बंदर, पैरल, ये सारे नज़ारे वहां के आम होते हैं, उनको देखते हैं, एंजॉय करते हैं। The most laid back individual, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ laid back। laid back means what? Who can tell? Any of you please tell? Sir, relax. Relaxed, lazy। कोई बहुत ही आलसी, आलसी से आलसी आदमी को, लेजी से लेजी आदमी को आप कूर्ग लेते जाओ, वह एक्टिव हो जाएगा। वहां का इन्वायरमेंट ही ऐसा है। ठीक है ना। कोई एकदम आलसी जो हिलता नहीं हो अपनी जगह से, बैठा रहता हो, उसे कोई एडवेंचर नहीं पसंद हो, उसे आप कूर्ग लेते जाओ, वो एडवेंचरस हो जाएगा। ठीक है। वो खूब एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वहां का जगह ही ऐसा है। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ हाई एनर्जी। वो चेंज हो जाता है लाइफ हाई एनर्जी में। ओके। एडवेंचर में, एडवेंचर्स लाइकिंग हो जाता है विथ रिवर राफ्टिंग वहां पे, क्योंकि रिवर राफ्टिंग होता है, कैनोइंग होता है। दीज आर एडवेंचर्स ऑफ रिवर। ये जो सारे जो बताया जा रहा है, रिवर राफ्टिंग, राफ्ट होता है, ठीक है ना, उस पे चढ़ के रिवर के ऊपर मूव अराउंड, कैनोइंग,
पतली पतली नावें होती हैं, उनमें बैठ के उस पे जर्नी, ठीक है ना। रैपलिंग, रैपलिंग मीन्स डिसेंस हाइट्स विथ रोप, ठीक है ना, रोप्स की हेल्प से हाइट्स पे चढ़ना। रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन पे बाइकिंग का एडवेंचर, ये सारा आप वहां पे एंजॉय कर सकते हो। Numerous walking trails in the region are favorite with trekkers. जो रीजनल वॉकिंग ट्रेल्स होते हैं, पगडंडियां होती हैं, वो बहुत ही फेवरेट्स होती हैं ट्रेकर्स के लिए। वहां पे वो ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं। See next paragraph. Birds, bees and butterflies are there to give you company. आप वहां पे जाओगे अकेले भी तो आपको दोस्त खोजने की जरूरत नहीं, आपको दोस्त मिल जाएंगे, ठीक है। और वो दोस्त कौन होंगे? बर्ड्स, आपके चारों तरफ तमाम बर्ड्स उड़ते रहेंगे, ठीक है। बीज एंड बटरफ्लाइज देयर टू गिव यू कंपनी, ठीक है ना। मकाकीज, मलाबारी स्क्वायरल्स, दीज आर एनिमल्स, ओके। लंगूर्स, स्लेंडर रोलीज कीप अ वॉचफुल आईज फ्रॉम द ट्री कैनोपी। आपके ऊपर वो नजर रखते हैं, जब आप वहां से गुजरते हैं तो तमाम लंगूर्स ऐसे आपको देखते हैं, ये कौन आ गया, ठीक है। तमाम बर्ड्स वो आपकी तरफ देखने लगते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है कि वो सारे आपको विजिट कर रहे हैं, आपको निहार रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। कह रहा है कि देखो इन सबों के साथ तो मस्ती ठीक है, लेकिन वाइल्ड एलिफेंट से दूर ही रहना भाई। ये नहीं सोचना कि चलो जैसे लंगूर्स हैं, बर्ड्स हैं और ये स्क्वायरल हैं, आप उनके साथ खेल रहे हो तो वाइल्ड एलिफेंट है, चलो उसके साथ भी खेल लें। अगर अपने ट्रंक में लपेट के फेंक दिया तो कितने किलोमीटर दूर जाके गिरोगे, ठीक है। तो राइटर बोल रहा है कि उनसे थोड़ा दूर रह के उनको भी देखते हैं थोड़ा दूर से, ठीक है। ओके, सी नेक्स्ट पैराग्राफ, सी नेक्स्ट पैराग्राफ। The climb to Brahmagiri Hills bring you into panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. अगर वहां पे ब्रह्मगिरी माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, उन पे आप चढ़े जाओ तो पूरा कूर्ग आपको दिखता है। मतलब कि माउंटेन, जैसे कि आप कभी मेले वगैरह में वो जो राउंड वाला झूला है उस पे गए हो, बोलो, तो उसमें जब हाइट पे ले जाके आपको एक बार रोक देता है, करता है नहीं ऐसे? वो राउंड वाला जो झूला होता है बड़ा वाला गोल गोल, तो एक बार आपको जब ऊपर आप जाते हो थोड़ी देर के लिए रोक देता है वो, फिर वहां से आप पूरे मेले का नजारा देखते हो। पूरा मेला नजर आता है कि नहीं आता? बताओ, आता है कि नहीं आता है? उस पे तो कितने डर के मारे बैठे नहीं होंगे उस पे कितने तो डर के मारे बैठे नहीं होंगे। बैठना चाहिए, कभी बैठ के देखो, एक्सपीरियंस करो। तो जब आप हाइट पे जाओगे तो फिर आपको पूरा नजारा, पूरा व्यू नजर आता है। वैसे ही आप जब ब्रह्मगिरी के हिल्स पर आप माउंटेन राइडिंग करके पहुंचोगे ऊपर, तो पेनोरमिक व्यू, ठीक है ना। पेनोरमिक मींस होता है व्यू ऑफ वाइड एरिया, ठीक है ना। जो वाइड एरिया है, जो पूरे दूर दूर का क्षेत्र का नजारा है, वो आपको नजर आता है। इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। A walk across to rope bridge leads to the 64-acre island to निसार ग्रंथमा। अगर रोप ब्रिज से आप जाते हो तो आप पहुंच जाओगे निसार गंधमा। एक और जगह है कूर्ग के पास ही, आप वहां पे कैसे पहुंच सकते हो? रोप ब्रिज से, ठीक है ना। माउंटेन्स के बीच में रोप ब्रिज बना हुआ है, उस रोप ब्रिज से आप यहाँ पर पहुंच सकते हो निसार गद्दमा, ओके। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क, वहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क बहुत सारे रहते हैं, ठीक है ना। वहां पे कौन रहते हैं? बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट, ठीक है ना। वहां पे तिब्बत के लोग आके रहते हैं। जो बौद्ध मॉन्क वहां पे हैं, उनकी ओरिजिन कहाँ की है? तिब्बतियन मॉन्क्स, बौद्धिस्ट मॉन्क्स लिव देयर, ओके, एट नियर बाई ब्लैकुप्पी, ठीक है ना। बैलकुप्पी एक जगह है, वहीं के पास रहते हैं। इज अ बोनस, ये एक आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। कूर्ग तो आप देखोगे ही, उन तिब्बतियन बौद्धिस्ट मॉन्क को भी आप देख लोगे उस रोपवे से वहां जाओगे। वो एक बोनस है, एक एक्स्ट्रा फायदा है, ठीक है। एक्स्ट्रा बेनिफिट को बोनस कहता है, ठीक है।
द मंक इन रेड, जो मंक है रेड कलर के कपड़े पहने रहते हैं। ऑकर, ऑकर मीन्स क्या होता है? ब्राउनिश, भूरे रंग के, गेहूं रंग के। एंड येलो रोब्स, एंड amongst the many surprise that waits to be discovered by visitor searching for the heart and soul of India. जो भी इंडिया के हृदय, उसकी आत्मा के बारे में खोज रहा है, वो बहुत कुछ पाएगा अगर वो कूर्ग विजिट करेगा तो। ठीक है ना? वहाँ बौद्धिस्ट मिलेंगे, मिलेंगे, उनकी हॉस्पिटैलिटी आपको देखने को मिलेगी, उनके वैलर के किस्से आपको सुनने को मिलेंगे, और रिवर में जो राफ्टिंग होती है और जो माउंटेनिंग है, माउंट बाइकिंग है, ये सारे जो एडवेंचर्स हैं, एडवेंचर्स हैं, उनसे आप अपने आप को नहीं रख पाएंगे अगर आप कितनों भी आलसी, अगर आप आलसी से आलसी आदमी हैं तब भी आप ये सब चीजें करने लगेंगे, वो आपको हाईली एनर्जेटिक बना देगा। ठीक है ना? ये राइट हियर इन कोक। अब देखिए फैक्ट फाइल आगे दिया हुआ है, हाउ टू रीच, आप कूर्ग कैसे पहुंच सकते हो। ठीक है ना? मेडिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मेडिकेरी है, ओके, एंड इज द ओनली गेटवे टू कूर्ग। द मिस्टी हिल्स, लस फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशंस विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू, आप पे जादू डाल देंगे, जैसे आप जादू में कहीं बच गए हो। ठीक है ना? मैजिक कर देंगे आप पे ये इतने सुंदर दृश्य वहां के जो हैं वो आपको नजर आएंगे। फाइंड अ रिसोर्ट, कॉफी स्टेट और स्टे इन होम फॉर ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस। वहां रहने के लिए आप कॉफी स्टेट में रह सकते हैं, रिसोर्ट में रह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई रूम किराए पे लेके रह सकते हैं। एयर से कैसे पहुंच सकते हैं? एरोप्लेन से। द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर मैंगलोर और बेंगलोर। मैंगलोर से 135 किलोमीटर है कूर्ग, और बेंगलोर से 260 किलोमीटर है। ठीक है, ऐसे आप कूर्ग पहुंच सकते हैं। आपका किसी छुट्टी में कहीं घूमने का प्लान हो, इस बार कूर्ग जाओ। ठीक है, आपको रास्ता बता रहा है कैसे कैसे पहुंचना है। ठीक है ना? There are flights to Mangalore from Mumbai and Bangalore from Ahmedabad, Chennai, Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi, कोलकाता, मुंबई, पुणे, इन सभी जगहों में से कहीं पर भी जाके आप वहां के लिए एयर टिकट बुक करके एरोप्लेन से ट्यूं उड़ते हुए पहुंच सकते हैं। ठीक है? ट्रेन से आप कैसे जा सकते हैं? बाई रेल। द नियरेस्ट रेल सेट आर मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। आप मैसूर, मंगलोर या हसन पहुंच जाइए, फिर वहां से आप पहुंच जाएंगे कूर्ग। रोड से अगर आप जाना चाहते हैं, देयर आर 2 रूट्स टू कूर्ग फ्रॉम बेंगलोर। बेंगलोर से 2 रास्ते हैं, बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, 250 to 60 किलोमीटर, ओके, एंड द रूट वाया मैसूर इज द मोस्ट frequented one. The other route is via Neelam, Mangal, Kunigal and Charanyana Patna. ये जो जगह हैं इनके थ्रू भी आप वहां पहुंच सकते हैं। These are ways to reach to Coorg. Clear? Now in this chapter, if you could not understand anything, you can ask. इस चैप्टर में अगर आपको कोई लाइन, कोई वर्ड, कोई पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, जो पढ़ाते समय आपको समझ में नहीं आया। यू कैन आस्क। Okay, then now come on exercises. Come on exercises. Where is Coorg? Very simple. Coorg is the smallest district of Karnataka. Okay, it is situated midway between Mysore and coastal town of Mangalore. कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर और मैसूर के बीच में ये सिचुएटेड। क्लियर? व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडाउ पीपल डिसेंट? कोडाउस पीपल, कुर्ग के लोग कहां से आए, क्या उसके, मैंने बताया 2 स्टोरीज है, स्टोरीज ऑफ अलेक्जेंडर्स ट्रूप और स्टोरीज ऑफ अरब ओरिजिन। तो ये दोनों स्टोरीज आपको लिखनी होगी। इज इट क्लियर? सी द थर्ड, what are some of the things you know about the people of Coorg? People of Coorg के बारे में क्या आप जानते हैं कि वो
पॉसिबली ग्रीक या अरेबिक्स हैं, ठीक है ना। वी नो अबाउट देयर कल्चर, ट्रेडिशन एंड मैरिज, ये सारी चीजें। और सेकंड है द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग क्या है, प्लीज टेल व्हाट इज मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग? कॉफी। Coffee. यस, Sir, coffee and spices. कॉफी एंड स्पाइसेस, सही है, ठीक है। कॉफी और मसाले, टू मेन क्रॉप्स हैं वहां पे। व्हाट स्पोर्ट इज ऑफर्स टू टूरिस्ट? कौन कौन से जो स्पोर्ट्स हैं वो टूरिस्ट को वहां पे ऑफर किए जाते हैं? या टेल। राफ्टिंग, कैनोइंग Sir, rock climbing. या रैपलिंग, ओके, माउंटेन बाइकिंग। तो ये सारे आपके बुक में है, आप देख के लिख लेना, ठीक है। व्हाट एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग? कौन कौन से एनिमल आपको नजर आते हैं? एलिफेंट्स, लंगूर्स, ओके, स्क्वायरल्स, और भी तमाम है, बटरफ्लाई, ओके। तो ये सारे आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। ओए इट गिर जाओगे। देखिए, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। बेंगलोर से कितनी दूरी पे है, कैसे आप वहां पहुंचोगे, ये सारा आपको फैक्ट फाइल में बताया गया है। यू कैन सी एंड राइट फ्रॉम देयर, ठीक है ना। और सी क्वेश्चन नंबर 4 नाउ।